Hello students, how are you? Today we are going to discuss about our second practical, redox titration, right? In previous lecture we discussed about what is redox titration, the titration in which oxidation and reduction reaction carried out is known as the redox titration, right? Today we are going to see the titration between potassium permanganate, which is KMnO4, and ferrous ammonium sulfate. It is known as also Mohs salt, right? The formula of Mohs salt is FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6H2O. Alright, today we are going to perform the titration between the two reactors chemicals, right? Potassium permanganate and ferrous ammonium sulfate. Let's start the practical. First, start with the A. To determine the concentration in terms of molarity and strength of potassium permanganate by the titrating it against the standard solution of 0.05 molar ferrous ammonium sulfate, which is Mohs salt, right? हमें क्या करना है? तो we have to find out the molarity and strength of the potassium permanganate solution by the titrating it against with the solution of 0.05 molar ferrous ammonium sulfate, right? हमें 0.05 मोलर एमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और उससे क्या करना है? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टाइट्रेट करना है और by this titration we have to find out the molarity and strength of this potassium permanganate, right? Now, apparatus which are using during titration, right? First one is burette. This is our burette, right? Then pipette. It's a pipette. Then conical flask, right? Here it is a conical flask. Then measuring flask. Here it is a measuring flask. Then 250 ml beaker and funnel, right? And also burette stand, right? It's our burette stand. Means we will use this all apparatus during the titration, right? Now chemicals required, right? First one is distilled water, then 0.05 molar Mohs salt, right? This is Mohs salt. Then sulfuric acid and potassium permanganate, right? These chemicals are required. Now apparatus setup कि हम जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हमें उसमें से कौन सा केमिकल किस में फिलअप करना है वो उसकी हम बात करते हैं अब. तो पहले ब्यूरेट आता है ब्यूरेट में फिलअप करना है हमें x मोलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. इन conical flask we have to suck up 10 ml ferrous ammonium sulfate of 0.05 molar, right? And 1 test tube sulfuric acid. जैसे कि हमने बात की थी सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों यूज़ करते हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, पहला तो कि जो ये मैंगनीज है उसका कन्वर्जन मैंगनीज डाइऑक्साइड में होने से वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है. दूसरी थिंग कि ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वही हम यूज़ करते हैं, उसका भी हमने रीज़न देखा था कि अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करें तो वो क्या करेगा, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, सही है. और हमें सिर्फ KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करते. दूसरी थिंग है अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर लिया तो ड्यूरिंग रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस द Cl2, राइट? एंड क्लोरीन गैस इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उस वजह से हम ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं ना ही नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? सो वी विल टेक 10 ml ferrous ammonium sulfate, right, solution in conical flask and 1 test tube sulfuric acid. Then indicator, सेल्फ इंडिकेटर एज अ KMnO4, राइट? हमें पता है जो KMnO4 है उसका क्या है, तो
पर्पल कलर है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मैंगनीज इंटू +7। जब भी मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका पर्पल कलर होता है और उसका खुद का कलर है, इसलिए हम कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को ही यूज़ करेंगे एज अ सेल्फ इंडिकेटर, राइट। एंड द कलर चेंज विल बी अ कलरलेस टू लाइट पिंक, राइट। नाउ comes a most important part of this titration, which is chemical reaction, right. Here it is a reduction half reaction in which potassium permanganate is oxidized during the reaction and it is reduced during the reaction and converted into manganese sulfate, right. Here in the potassium permanganate, the oxidation state of manganese +7, right, and manganese reduce from +7 to +2, राइट, एंड फॉर्म मैंगनीज सल्फेट, राइट। यहाँ पे क्या होगा, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो रिड्यूस हो गया मैंगनीज सल्फेट फॉर्म करेगा जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। और साथ में क्या हो जाएगा, तो उसके लिए जो हमें रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और ड्यूरिंग रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस द 5 नेसेंट ऑक्सीजन विच विल ऑक्सीडाइज अवर फेरस अमोनियम सल्फेट, राइट। Now this nascent oxygen will be oxidize the Fe+2 into Fe+3, right. We are using ferrous ammonium sulfate in which iron is containing +2 oxidation state, which is converted into ferric sulfate in which Fe having +3 oxidation state, means there is a oxidation of Fe by 1 electron. Alright, now you have to write the neat reaction for this. Then you will get 2 KMnO4 plus 10 FeSO4 into NH4 twice SO4 6H2O plus 8 H2SO4. Then it will produce K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 thrice plus 10 NH4 twice SO4 plus 68 H2O, right. You can balance this reaction. पहले आप क्या कर दोगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ Fe है वो कितने हैं, 2 है। तो इस पूरे इक्वेशन को आप ये पहले जो हमारा रिएक्टेंट है फेरस एमोनियम सल्फेट उसे क्या करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रहा है मैंगनीज का वो क्या है, +7 से +2, मतलब के 5 का चेंज आ रहा है। तो आप उस चेंज को बैलेंस करने के लिए आप इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट दिस नेट रिएक्शन, राइट। नाउ टॉक अबाउट द आयनिक इक्वेशन, कि यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सही है। और जब भी हम किसी भी चीज़ में बात करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि किसका कितना रिडक्शन हो रहा है या किसका कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ले लिया है क्या, तो जिन एलिमेंट्स में चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में उसकी ही हम बात करेंगे। तो हमारा जो रिडक्शन हाफ है वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगी हमारी। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट था उसमें जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, वो क्या करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में रिड्यूस हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रही है, तो हमारा जो फेरस सल्फेट था वो कन्वर्ट हो रहा था फेरिक सल्फेट में, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फेरस सल्फेट है FeSO4 है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2SO4 थ्राइस में, मतलब कि फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में, Fe+2 में से जा रहा है वो Fe+3 में। और साथ में वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, डोनेट करेगा, सही है। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रिएक्शन को आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। इफ यू मल्टीप्लाई दिस सेकेंड रिएक्शन बाय 5 एंड राइट द नेट रिएक्शन, यू विल गेट द दिस रिएक्शन MnO4-1 plus 8H plus then 5 Fe+2, right, because you multiply this reaction by 5 for the removal of this 5 electron, and Mn+2 plus 5 Fe+3 plus 4H2O, right.
मतलब कि जब भी हम मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन करेंगे विद द पोटेशियम पोमेग्रेनेट, द मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 to +2 and ferrous will be oxidized from ferrous to ferric. Right? Get the reaction? Now procedure. Rinse the burette with the potassium permanganate solution and fill the burette with the potassium permanganate. Right? हमें क्या करना है, पहले burette को rinse कर लेना है, फिर उसे potassium permanganate के solution से fill up कर देना है. Then fix the burette in the burette stand and place white tile below the burette in the order to find the end point correctly. Right? उसे हमें क्या करना है, burette stand में fix करके फिर नीचे एक white tile लगा देनी है, ताकि जो हमारा end point रहेगा वो क्या करें होगा, हम correctly measure कर सकेंगे. क्योंकि हमें light pink color है तो वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए, उस वजह से ये क्या किया, तो हमने यहाँ पे 0 रीडिंग सेट कर दिया है, 0 तक सेट कर दिया है. सही है. देन पिपेट आउट 10 ml 0.05 मोलर स्टैंडर्ड फेरस एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क. फिर हमें 10 ml क्या करना है, सकअप करना है और कॉनिकल फ्लास्क में लेना है. यहाँ तक मार्क हो, यहाँ पे जो भी मार्क होगा पिपेट में वहाँ तक उसे सकअप करना है और फिर उस सॉल्यूशन को हमें कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है, कन्वर्ट कर लेना है. देन वी हैव टू एड अ टेस्ट ट्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज टू फॉर्म मैंगनीज डाइऑक्साइड. राइट? जो ऑक्सीडेशन है उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है. राइट? और ये सारी चीज़ें हमें किस में ले लेनी है, कॉनिकल फ्लास्क में. देन note down the initial reading in the burette before starting the titration. टाइट्रेशन स्टार्ट करें उससे पहले क्या करना है हमें, तो ब्यूरेट में जो इनिशियल हो रीडिंग उसे नोट डाउन कर लेना है. देन the solution of conical flask is titrated against the potassium permanganate solution and simultaneously the solution in the flask shake gently. सही है, पहले इनिशियल रीडिंग नोट डाउन कर लिया, उसके बाद हमें टाइट्रेशन करना है और साथ साथ में हमें क्या करना है, तो हमारे कॉनिकल फ्लास्क को स्लोली सेक करना है. देन क्या होगा, इनिशियली जो पर्पल कलर है पोटेशियम पोमेग्रेनेट का वो डिस्चार्ज हो जाएगा मोल सॉल्ट के साथ, और जैसे जैसे पूरा मोल सॉल्ट टाइट्रेट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो एक परमानेंट पिंक कलर फॉर्म होगा जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट. तो जैसे जैसे हम टाइट्रेट करेंगे तो ये जो पर्पल कलर है वो इसमें आते ही क्या हो जाएगा, मोल सॉल्ट के साइड तो वो रिएक्ट करेगा और उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कलर है ड्यू टू द Mn+2. और जब भी वो मोल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, मतलब कि उसका वो जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर. और जब भी इस कॉनिकल फ्लास्क के पूरे मोल सॉल्ट को वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा. उसके बाद जब Mn+7 एक ड्रॉप भी आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, परमानेंट पिंक कलर, और वही हमारा क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट. सही है. नाउ note down the upper meniscus on the burette reading, record the reading in the observation table and calculate the molarity of the given solution. Right? हमें क्या करना है, जब भी वो परमानेंट पिंक कलर आ जाए उसके बाद हमें उसे रीडिंग नोट डाउन कर लेना है. ऐसे सेम प्रोसीजर हमें 2 से 3 बार करनी है और फिर मोलारिटी कैलकुलेट करनी है बाय दिस burette reading. Now we will see the टाइट्रेशन. पहले हमने क्या किया, तो हमारे ब्यूरेट को डिस्टिल वाटर से पहले क्या कर लो, क्लीन कर लो. 2 से 3 बार ऐसा आप कर सकते हो कि पहले थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लो, उससे क्लीन कर लो. सही है, और पूरा डिस्टिल वाटर निकाल दो. उसके बाद सेम प्रोसीजर करनी है विद द पोटेशियम पोमेग्रेनेट. थोड़ा सा पोटेशियम पोमेग्रेनेट हमें लेना है और फिर उसके थ्रू हमें अच्छे से क्या करना है, ब्यूरेट को वॉश कर लेना है. देन जब ये पूरी ब्यूरेट हमारी वॉश हो जाए, देन वी हैव टू ऐड पोटेशियम पोमेग्रेनेट एंड हैव टू सेट अप द मार्क 0. सही है. तो जो भी एक्स्ट्रा हो और खास यहाँ से बबल हमें निकाल देने हैं. सही है, बाय द फोर्स ऑफ पोटेशियम पोमेग्रेनेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमें 0 सेटअप कर देना है. अगर आपने एक बार 0 सेट कर दिया उसके बाद क्या करना है आपको, तो पिपेट लेना है और उस पिपेट से क्या करना है, तो आपको जो मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो लेना है. उससे पहले सेम आपको ब्यूरेट के जैसे डिस्टिल वाटर से पिपेट को वॉश आउट करना है. फिर मोर सॉल्ट का थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके पिपेट को फिर से आपको क्या करना है, वॉश करना है.
और उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको उसमें 10 ml सॉल्यूशन सकअप करना है मोर सॉल्ट का। सही है। और फिर यहाँ पे जो ब्यूरेट में मार्क लगा होगा वहां तक उससे आपको सेट करना है। ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्क है वहां तक हमें क्या करना है, तो वो हमारा सॉल्यूशन सेट करना है। उसके बाद उसे पूरा का पूरा कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। लास्ट पॉइंट को लेने के लिए हमें उस पिपेट को कॉनिकल फ्लास्क के साथ टच करेंगे तो लास्ट ड्रॉप भी आ जाएगा। उसके बाद हमें ऐड करना है 1 टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। और जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, वो किस लिए ऐड किया, तो MnO2 में कन्वर्जन स्टॉप करने के लिए। फिर उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें क्या करना है, टाइट्रेशन। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअस स्टरिंग के साथ टाइट्रेट करोगे तो ये जो कलर है वो स्टार्टिंग में आएगा जाएगा ऐसा होगा, और एक टाइम आएगा कि ऐसा क्या हो जाएगा, परमानेंट कलर आ जाएगा। और जब ये परमानेंट कलर आ जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको वो ब्यूरेट रीडिंग नोट डाउन कर लेना है। सही है। और यही प्रोसीजर आपको 2 से 3 बार करनी है। ओके। और उसे आपके टेबल में लिख लेना है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ फेरस एमोनियम सल्फेट, जिसे कि हम मोसोल्ट बोलते हैं, उसका वो आ जाएगा। वो हमने पिपेट में सकअप किया है तो यहाँ पे 10 ml आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे लिखना है ब्यूरेट रीडिंग, उसमें हो जाएगा इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। टाइट्रेशन करने से पहले जो ब्यूरेट रीडिंग हम देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनल वाला जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर उन दोनों का हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। सही है। अगर y में से हमने x को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाय दिस टेबल वी हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ KMnO4, राइट। उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे A1M1V1 इक्वल टू A2M2V2, राइट। Here A1 is the number of electrons lost by the ferrous ammonium sulfate इक्वल टू 1, क्योंकि फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। साथ में जो A2 है हमारा, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द पोटेशियम परमैंगनेट विच इज 5, क्योंकि Mn+7 है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में जा रहा है। तो डोनेटिंग जो है बाय एमोनियम सल्फेट, वो क्या, फेरस एमोनियम सल्फेट, वो हो जाएगा 1, और जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाय द पोटेशियम परमैंगनेट वो हो जाएगा 5। तो A1 A2 हो गया हमारा यहाँ पे। अब M1 है मोलारिटी ऑफ फेरस एमोनियम सल्फेट, जो कि हमने ले ली है 0.05 मोलर, और मोलारिटी ऑफ KMnO4 हमें फाइंड आउट करनी है। V1 है हमारा वॉल्यूम ऑफ एमोनियम सल्फेट, जो हम 10 ml ले रहे हैं, और V2 हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच इज ब्यूरेट रीडिंग। सही है। तो यहाँ पे आप सारी टर्म्स जानते हो, सिर्फ M2 अननोन है। तो बाय द solving this formula you can get the answer, the molarity of the potassium permanganate, right? Then we have to also find out the strength of the potassium permanganate. This can be determined by the calculation of molarity of potassium permanganate is multiplied by the molar mass of potassium permanganate, right? If you multiply molar mass by the molarity, you will get the strength of the potassium permanganate. Now the molar mass of potassium permanganate can be calculated by this, and you will get the molar mass of potassium permanganate is 158. Replace the value and molarity also, which we are finding by the above formula, right? And then you have to write the result. First, molarity of KMnO4 in molar, and second, strength of potassium permanganate in gram per liter. All right. Hope you understand this titration. If there is any query, right, then you can send me by the comment. Thank you.